طرف سے خدا میں السلام. میں شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا اپنی مرضی کے مطابق اپنے پاک گھر میں لے کر آیا ہے، اور میں ارم بیٹی کا شکر ادا کرتی ہوں جو مجھے یہاں پر لے کر آئی ہیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کو عزت و جلال دے سکیں. اور یہ سمیرا جس کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، خوشی ہوئی کہ وہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے. ہم نے ہر وقت اس میں خوش رہنا، اس کے نام کو عزت و جلال دینا ہے. میرا نام مسز ربینہ رفیق ہے اور میں اسکول میں پڑھاتی ہوں. شکر کرتی ہوں 3 بچے ہیں، میں نانی بھی ہوں اور دادی بھی ہوں. یہ خدا نے مجھے بڑی برکت دے رکھی ہے. اور زندگی میں 20 سال ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ کو ڈیتھ ہوئے ہوئے، لیکن ہمارا خدا جو ہمیں زور دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، عقابوں کی مانند استعمال کرتا ہے. میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ہمت دیتا ہے. اپنی کچھ دعائیاں شیئر کروں گی. بچے مجھے دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے، جب تھے چھوٹا بچہ نرسری میں تھا. اب شکر ادا کرتی ہوں چھوٹا بیٹا جس میں میل نرس ہے اور نیشنل ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے. بڑا بیٹا بھی جاب کر رہا ہے، بیٹی بھی BA کیا ہوا ہے، اس کے بھی بچے ہیں. اور میں شکر کرتی ہوں، اور میں آج تک بھی جاب کر رہی ہوں. جہاں جہاں مجھے خدمت ملتی ہے میں خدمت خدا کے نام کو دیتی ہوں. اور آج میں ارم کی شکر گزار ہوں، بیٹی ارم کی، کہ یہ بلکہ تیسرا منگل ہے. میں یعنی کہ میری بہو آتی ہے نا جب ڈیوٹی سے، تو اس ٹائم پہ آتی ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. لیکن آج میں نے اپنی بہو کو کہا کہ مجھے 3 منگل گزر چکے ہیں لیکن آج میں نے مس نہیں کرنا نا، آج میں نے ضرور جانا ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کی مرضی کے مطابق میں یہاں پہ آئی ہوں. اور بھی چرچز میں میری خدمت ہے. مجھے یعنی کہ یہ جو توڑا اس نے ہمیں دے رکھا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے دبانا نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کے نام کو ہم نے عزت و جلال دینا ہمیشہ. اور یہ میری صفت نہیں ہے، میں صفت نہیں بیان کروں گی، بلکہ میں کہوں گی کہ یہاں بھی میری خدمت اگر خدا لینا چاہتا ہے تو میں ضرور کروں گی. 3 چرچز میں شاعر ربانی دیتی ہوں اپنے ہاتھوں سے بنا کر. اگر آپ کو مجھے یہاں بھی خدمت کا موقع ملے گا تو میں یہ بھی خدمت یہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہوں. خداوند کا شکر ادا کرتے میرے عزیزوں. جیسے کلام میں لکھا ہے، اب تھوڑی مدت باقی رہ گئی ہے، آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا. واقعی اس کا قریب، بہت وقت جو ہے وہ قریب ہو گیا. ایک دور تھا جب خدا بولتا تھا اپنے بندوں کے ساتھ، خدا باتیں کرتا تھا، روبرو باتیں کرتا تھا. پھر ایک دور آیا جب یسوع خود اترا اور انسانوں کے درمیان باتیں کرتا رہا، معجزات کرتا رہا، اور جنہیں یعنی کہ اس کے شاگردوں نے، لوگوں نے اسے چھوا، دیکھا. اور آج جو دور ہے وہ تیسرا اور آخری دور ہے، پاک روح کا دور ہے. اب ہم نے پاک روح کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مانگنا کیا ہے. پاک روح ہمیں تیار کر. جس طرح اگر دیکھا جائے تو دناوی دلہن جو ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے، بیوٹیشن آ کے اس کو تیار کرتے ہیں. ہمیں کس نے تیار کرنا ہے؟ ہمیں پاک روح نے تیار کرنا ہے. اور ان عقل مند کنواریوں کی طرح ہم نے تیار ہونا ہے. نادان کنواریوں کی طرح نہیں، بلکہ ہم نے عقل مند کنواریوں کی طرح تیار ہونا ہے. تو میرے عزیزوں، میں اکثر بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوں تو میں اکثر ایسی باتیں کرتی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے چولہے کی آگ نہیں جلانی، آپ نے اپنی قربانی کی آگ پہلے چڑھانی ہے. سب سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے اٹھ کے کھانا پکانا، ہم نے چولہا جلانا ہے، اس میں سے آگ جلانی نہیں. اپنی قربانی کی آگ چڑھائیں پہلے، سب سے پہلے، بعد میں پھر وہ والا کام کریں. میں اکثر بڑی باتیں کرتی رہتی ہوں، اور میں
अक्सर लेडीज के साथ, बेटियों के साथ कहती हूँ, जिंदगी में 2 चीजें आप साफ रखें, 2 चीजें आप साफ रखें, एक दिल और एक घर। घर साफ होना चाहिए, कोई पता नहीं मेहमान कब आ जाए, और दिल जो उसकी जगह है, जहाँ पे वो आता है, तख्त नशीन होता है। हमने अपने दिल को पाक साफ करना है, हमने अपने दिल से गंदगी को दूर करना है। यही जैसे हम गीत गाते हैं, दिल ले ले मेरे प्यारे यीशु, इसे तूने बनाया है, हमने अपना दिल उसको देना है। मेहरबान खुदा है, वो पाक खुदा है, वो ग़यूर खुदा है, वो अल्फा और मेगा है, वो हरावल और चंडावल है, वो हमारा जोर है, वो छुपने की जा है, हकीकी नजात दहिंदा, और सबसे बढ़कर वो हमारा बाप है, जिसे हम अब्बा कहकर पुकारते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। वो आज कल और अब तक यकजा खुदा है, वो किसी का तरफदार नहीं है, वो तो अपनी मुट्ठी को खोलता तो चुनिंदा परिंदों को भी खुराक मुहैया करता है। हम तो उसके खून खरीदे हैं, उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है और उसने हमें अपना बना लिया है। हम खुश नसीब लोग हैं और हमने उसके आगे झुकते रहना है, मांगते रहना है, क्योंकि ये आखिरी वक्त है, हमने अपने आप को तैयार करना है। वो मेहरबान खुदा है, वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, ना कभी अकेला तन्हा छोड़ता है, बल्कि उसका खूबसूरत वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितना खूबसूरत वादा है। वो कहते हैं आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वही हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है, अपने में बढ़ने का फजल बख्शता है। आइए मेरे साथ देखें, खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे दूसरा सलातीन और उस 4 बाब पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। इन्हें बेटी रहनुमाई करेगी तिलावत करने में। दूसरा सलातीन खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत में से। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज़ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरायत ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। अब इसमें से हम 3 चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि 3 चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती हैं जो इस बेवा ने
की। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और अम्बियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। जो अम्बियाज़ादे थे वो खुदा से बड़ा डरते थे, खुदा के साथ साथ रहते थे, उसकी हजूरी में रहते थे, कामते थे, क्योंकि वो खुदा से प्यार करते थे। इसी तरह अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अम्बियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत जिसका शौहर जो है वो मर गया, और वो क्या करती है, एलीशा से फरियाद करती है और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है। वो उसका खादम था, एलीशा नबी का खादम था, और वो उसने क्या किया, वो एलीशा नबी के पास गई। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि जब भी हम पर मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आए, तो हमने क्या करना है, अपना रुख जो है वो खुदा की तरफ करना है। जिस तरह ये एलीशा नबी ने खुदा की तरफ रुख किया, जैसे कलाम में लिखा है कि अपने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमने हमेशा उसकी तरफ देखना है। ज़बूर 6 में लिखा हुआ है, 16 में, कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो हमने गैर मबूदों के, जब भी हम पर दुख, परेशानी, मुसीबत आए, तो हमने क्या करना, अपनी जिंदा खुदा की तरफ रुख करना है। किसी गैर मबूद के पीछे नहीं जाना, किसी की बातों में नहीं आना, बल्कि हमने अपने सच्चे खुदावन की तरफ जाना है और फरियाद करनी है। लिखा है कि वो उसने फरियाद की। इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना और फरियाद करना बहुत फर्क है। फरियाद करना यानी कि दिली तौर पर बेबस हो जाना, लागर हो जाना। अब जहाँ पे हम फरियाद का लफ्ज देखते हैं तो हम हन्ना की तरफ जाएंगे कि उसने क्या की थी, उसने फरियाद की थी। उसने दुआ, इल्तिजा या दरख्वास्त नहीं, बल्कि उसने फरियाद की थी। यहाँ तक उसने फरियाद की कि उसने जुबान नहीं उसकी चल रही, बल्कि उसके होंठ हिल रहे हैं, फरियाद कर रही है। और जब इंसान फरियाद करता है, तो जब आंसुओं के साथ फरियाद करता है, तो वो क्या करता है, आंसुओं को मशकीज़े में जमा कर लेता है। उसने अपना रुख एलीशा नबी की तरफ किया, उसकी तरफ गई और उससे जाकर कहती है, और ना सिर्फ गई, ना सिर्फ फरियाद की, उसने जाकर कहा कि तेरा खादम, यानी कि उसने उसको आगे जाहिर किया, अपना बताया, उसने हाल बयान किया और कहा कि तेरा खादम, यानी कि वो उसका खादम होगा एलीशा नबी का, जो कहती है कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है। आगे से वो कहते हैं तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। अगर इसका शौहर डरता था तो यकीनन इसकी बीवी भी डरती होगी, उसके साथ साथ चलती होगी, खुदा के पीछे चलती होगी, उसके अहकाम कवानीन को मानती होगी, उसका पूरा खानदान खुदा के साथ होगा। और उसने कहा कि सो अब कर्ज खा है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। एक उसका शौहर मर गया, दुख, दूसरा दुख कि उसके क्या आ गए हैं, कर्ज खा आ गए हैं, ताकि उसको उसके बेटों को भी ले जाए। जब उसके बेटे भी उसके पास से चले जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही वो औरत मर जाएगी। एक दुख, उसके बाद दूसरा दुख, यानी कि उसने अपने नबी के पास आई है और उससे फरियाद की है। इसी तरह हम कलाम में देखते हैं, इसके बादशाह जब खुदावन ने कहा कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू अब मर जाएगा, तू अब मर जाएगा। इसके बाद तो कोई उम्मीद ही नहीं रहती। जब उसको इतनी बड़ी बात कर दी है कि
तो अब मर जाएगा, अपने घर का बंदोबस्त कर ले। तो क्या हुआ, उसने हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया, अपना रुख खुदावन की तरफ किया। हालांकि वो बादशाहों का बादशाह था, हजारों डॉक्टर खड़े कर सकता था, नजूमी पास बुला सकता था, उसको बादशाह था, उसको किस चीज की कमी थी? वो डॉक्टरों की लाइन लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। उसने क्या किया, अपना रुख खुदावन की तरफ किया और उसने कहा कि देख, मैं तेरे हजूर सच्चाई के साथ चलता रहा हूं और जो तुझे भला लगा मैंने वो ही किया। देखे उसके पास इतनी बड़ी खूबी थी, जो अपने खुदा से बात कर रहा है। मैं कहती हूँ क्या हमारे पास ऐसी खूबी है कि हम भी अपने खुदा के सामने ये रख सकें कि देख, मैं वफादारी के साथ तेरे साथ चलती रही हूँ, मैं तेरे काम, तेरे कवानीन, तेरे मुंह की बातों पर अमल करती रही हूँ। उसके पास इतनी पावर थी कि वो पावर के साथ बोला कि देख, मैं पूरे दिल और सच्चाई के साथ तेरे हजूर चलता रहा और जो तुझे भला लगा मैंने वो ही किया। तो मेरे अजीजों क्या हुआ, मोजिजा हुआ। कितने साल उसको और मिल गए? 15 साल उसको मिल गए, खुदा ने 15 साल उसको दे दिए। तो कितनी बात है ये कि यानी कि हमने ये देखना कि हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। गुलाम बने, यानी कि वो जानती थी गुलामी की जिंदगी क्या है। उसे सारा सीन नजर आता होगा कि जब बच्चे मेरे गुलाम बन जाएंगे, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो बोझ उठाएंगे, उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलेगा, कैसे क्या हाल होगा। वो तस्वीर उसके सामने होगी, इसलिए वो डरती थी कि बच्चे मेरे गुलाम बन जाएंगे। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अब जब कितनी बड़ी बात है, वो कह रहा है, अलीशा नबी से कह रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना तो खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी कि इतनी गट्स और इतना पावर हमारे अंदर होना चाहिए कि खुदा अपने बंदे से पूछे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अब अलीशा नबी से कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसे कह रहा बता तेरे पास क्या है। तब उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। मेरे अजीजों, हमारे पास जिंदगी में कुछ ना कुछ होना चाहिए उसे देने के लिए। अक्लमंद कुंवारियों के पास ना मशरे थी, बल्कि उसके साथ क्या था, तेल भी था। खाली नहीं थी, वो अपना पूरा बंदोबस्त करके लेके आई हुई थी। तो हमारी जिंदगियों में भी हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जो हमने उसको देना है। उसने तो हमें पैदा इसलिए किया है ताकि हम उसकी हमदो-सताइश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह मैं अपनी थोड़ी थोड़ी गवाहियाँ भी शेयर करूंगी। एक दफ़ा मैं सुबह नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाते बनाते पाक रूम मुझसे बोला, कहता बेटी मुझे बता, जब तू खुदा के पास जाएगी तो तू क्या लेके जाएगी अपने इस बदन में, क्योंकि हम उसके बदन हैं, हम खाली बर्तन हैं, हम बर्तन की मानंद है। पाक रूम ने मुझे जलील तजर्बे के साथ बताया, देख जैसे लोग सफ़र करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टिफ़िन देते हैं। और टिफ़िन में कोई गंदा या मैला कुछ आना, ये पुराना नहीं, बड़ा प्यारा है टिफ़िन तैयार कर दें ताकि आले दुआले जो लोग हों देखन कि कितनी चीज बर्तन ले आया, कितना साफ बर्तन है। अच्छा, दूसरा पागल कहना उस बर्तन की पाते हो तुम, उस टाइम तुम कौरमा पाते हो, शामी टिक्कियाँ पाते हो, बिरयानी पाते हो, आस पास के लोग देखन तो कह भाई कितना अच्छा इन्होंने
ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਤੇ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਐਸ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ मैं वाकई हिल गई थोड़ी देर से मैं शुक्र किया उस पाक खुदा के पाक तूने बड़े अच्छे तजर्बे के नाल मनो ना गल समझाई कि वाकई से खाली बर्तन ना ते किसी की पा के लैके जाना अच्छे अमाल खूबियाँ अच्छे ताल्लुकात उहदे नाल अच्छा रिश्ता यह चीज़ां जिहड़ियां उहनूं पसंद आनियां ने क्योंकि वो पाक है हमारा खुदावन पाक है वो पक्कीज़गी चाहता है हमारे अंदर ये शुक्र है कि पाक रूह जो है ना हमारी रहनुमाई करता है हमें गाइड करता है हमें समझाता है उसने क्या कहा है कि पाक रूह एक मददगार है यीशु ने हमें पाक रूह मददगार के लिए दिया है तो पाक रूह हमें यही गाइड करता है कि हमने क्या करना है तैयारी के साथ उस सफ़र पर जाना है हमने और साथ क्या लेके जाना अच्छी चीज़ें अच्छा अमाल लेके जाना तो तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब बर्तन हमसायों से बर्तन आरेत ले वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना अब ये उसने हुक्म दे दिया है यहाँ पे हम देखते हैं ईशा नबी ने उसको हुक्म दिया है अब थोड़ी देर के लिए वो सोच सकती थी वो खुदाया ये मनु केड़ा इन्हें काम देता है हमसाया को जाके मैं बर्तन लाऊं आजकल के ज़माने में अगर हम सोच में पड़ जाए तो मैं इसी तक करिए ही ना ओहो इन्हें पता नहीं थी तो नाने किधर का देने भी नहीं सोच में पड़ जाएंगे लेकिन उसने औरत ने हुक्म माना यहाँ पे हम 7 चीज़ें अक्सर अलीशा नबी हम यहाँ पे देखते हैं ना नमान कोड़ी को देखते हैं नमान कोड़ी जब उसके पास आए शिफा लेने के लिए क्योंकि वो कोड़ में मुब्तला था नमान कोड़ी लेकिन जंगी सूरमा था और अलीशा नबी के पास जब गया और वो यही कहता रहा कि शायद ये मेरे पास आएगा मेरे सर पे हाथ रखेगा और मेरे सर पे दुआ करेगा लेकिन अलीशा नबी ने उसे दूर से कहा जा दरियाए यरदन में कितने गोते लगा 7 बार और यहाँ भी हम देखते हैं वो 7 बार हुक्म दे रहा है उसको पहला हुक्म क्या है अपने हमसायों से बर्तन आरेत ले नंबर 2 वो कह रहे हैं कि वो बर्तन खाली हो नंबर 3 वो कह रहे हैं वो बर्तन थोड़े ना हो फिर वो कह रहा है अपने बेटों को साथ लेना यानी कि वो सिर्फ माँ बाप को बरकत नहीं देना चाह रहा वो कह रहे हैं कि औलाद भी साथ बरकत पाए यहाँ पे ये चीज मुझे इतनी टच की कि वो कह रहे हैं कि अपने बेटों को भी साथ लेना ये नहीं कि तूने ये अमल करना है बच्चों को बाहर रखना उसने क्या अपने बच्चों को भी बेटों को भी साथ देना और लड़कों को इसका मतलब ये है कि हमने अपने पूरी औलाद को साथ देना है इस काम में ताकि खुदा हमको बरकत दे हमारी नस्लों को भी बरकत दे उसने कहा कि तू फिर क्या करना लड़कों को साथ देना पीछे से दरवाजा बंद कर देना ये 5वां हुक्म था और 6वां हुक्म ये था कि तू क्या कर बर्तनों में तेल को उंडेलना और 7वां हुक्म ये था कि जब वो बर्तन भर जाए तो उनको क्या करना अलग करना मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने कहा ये तो 7 हुक्म दे दिए उन्हें मैंने कहा खुदा पाक रूह तेरा शुक्र करते तो भेदों को खोलता है क्योंकि वो 7 बार और जब वो शुनोमी औरत का बेटा जब वो मर जाता है वो भागी भी जाती है उसके पास अलीशा नबी के पास अलीशा नबी क्या कहते हैं अपने खातों को देख ये क्या कहती है तो वो भागी भी जाती है नबी के पास ही जब वो अलीशा नबी कहता है खैरियत है कहती है खैरियत है पीछे बेटा मरा हुआ है इतनी तसल्ली उस औरत के अंदर इतना हौसला उस औरत के अंदर
कि वो मरा हुआ छोड़ के आ गई है और अलीशा नबी कह रहा बता खैरियत है, वो कह रही खैरियत है। और क्या हुआ तो वो अलीशा नबी को अपने साथ लेकर गई और उसका बेटा जिंदा हो गया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं हुक्म मानने का अमल। अब्राहम को खुदा ने हुक्म दिया अपने अकलौते बेटे को कुर्बान कर, उसने माना। नूह को हुक्म दिया कि तू क्या कर, कश्ती बना, उसने हुक्म माना। पतरस को उसने हुक्म दिया जो सारी रात क्या करता रहा, मछलियां पकड़ता रहा, लेकिन मछली एक भी हाथ ना आई। उसने खुदा का हुक्म माना। जब यीशु ने कहा कि अपना जाल गहरे में डाल, तो उसने जाल जो है मछलियों से फटने लगा। ये हुक्म माना। और जब काना गलील की शादी में यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि इन मटकों में पानी भर दो, वो बड़े हैरान हुए, मटकों में पानी भरना है हमने। लेकिन मुकद्दसा मरियम ने कहा जैसे ये कहता है वैसे ही करो। शागिर्दों ने हुक्म माना, मौजज़ा हुआ। हुक्म मानना एक जो है ना वो मौजज़े की कुंजी है। हमारी जिंदगी में तब ही मौजज़ा होगा जब हम हुक्म मानेंगे। मछली को हुक्म दिया तो अपना मुंह खोल, हुक्म माना। जानवर भी उसका हुक्म मानते हैं। लाजर को, लाचार दिन के मुर्दा को कहा कि उठ के बाहर आ जा, उसने भी हुक्म माना। याई की बेटी को कहा, उसने भी हुक्म माना। तो किसी वक्त मैं बड़े गौर से ना सोचती हूँ क्या खुदा मुर्दे भी तेरा हुक्म मानते हैं, बदरुएं भी हुक्म मानती हैं। हम तो मुर्दों और बदरुआ से भी बुरे कि हम हुक्म नहीं मानते। इस वक्त मैं अपने आप से सोचती हूँ कि वाकई हमसे तो अच्छे वो मुर्दा, वो बदरू है जो हुक्म मानती हैं, डरती हैं, कांपती हैं, दूर से कहते तू खुदा का बेटा है। हम हुक्म नहीं मानते। कलाम में कहा जाता है, सॉरी चर्च में कहा जाता है अपनी बाइबल साथ लेकर आओ, अपनी बाइबल साथ लेकर, लेकिन नहीं सुनते, नहीं लेकर आते। रीड है ना। एक वक्त था, मैं आपको बताती हूँ कमजोरी, जब मैं भी थी ना शादी से पहले नौलखा चढ़ जाया करती थी। कलाम मेरा हाथ कभी भी नहीं सोया। जब उसने पकड़ा तो अब कलाम के बगैर मैं निकलती नहीं हूँ। ऐसे उसने कलाम दे दिया, इसके बगैर मैं निकलती नहीं। मुझे दाऊद नबी की बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता है कि अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरी जुबान तालू के साथ चिपक जाए, मेरा हाथ जो है वो हुनर करना भूल जाए। ये देखें कैसी बातें। वो कहता है कि हर वक्त मुझे सताते हैं तेरे हुक्म बेसबब। मैं कहने खुदाया बंदा तेरे जो डब्बे ही रहता सी वैसे का मतलब कहना मैं तेरे हुक्म ही सताते सन। सताना एक लफ्ज़ है कि जैसे हमें बच्चे को भी बड़ा सताते हैं, तो इंज जबरदस्त सताते सन ਉਹਦੇ हुक्म। तो मैं कहा सानू की सतांदा, सानू बिजली का बिल, पानी का बिल, दुनिया की फिक्र, परेशानियां, मतलब हम लोग दुनिया में रहते। साधु सुंदर सिंह कहता है तुम दुनिया में तो रहो, दुनिया में तो रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना करो। दुनिया को हमने अपने अंदर नहीं करो। साधु सुंदर सिंह ये कहता है कि मैं ये कहती हूँ कि देखो कैसे कैसे लोग उसका हुक्म जो मानते रहे, मौजज़ा होता रहा उनकी जिंदगी में। और इस औरत ने भी उसका हुक्म माना। जैसे जैसे नबी ने कहा उसने वैसे वैसे ही किया। 7 उसको हुक्म दिए और 7 के 7 हुक्म उसने पूरे किए। और आखिरी बात हम देखते हैं, वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। वो कहती है कि सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटा को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो
तो उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं, तब तेल मौकूफ हो गया। आगे लिखा है कि तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान कर। यानी कि आखिर में उसने क्या किया, अपनी मर्जी नहीं की कि जी उसको बड़ी बरकत मिल गई, बहुत बरकत मिली और वो बरकत लेकर जी घर में बैठ गई। नहीं, वो पीछे गई है, मर्दे खुदा के पास, नबी के पास गई है, शुक्र गुजारी के तौर पर उसने सारा वाकया उसे बताया। और फिर मर्दे खुदा ने उसे कहा कि क्या कर, तू जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और फिर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करे, यानी कि गुजारा करे। कितनी खूबसूरत बात है कि वो वापस गई है, खुशी के साथ गई है। सबसे पहले वो रोती भी गई है, फरियाद करती गई है, इल्तिजा करती गई है, आंसू के साथ गई है, लाचार गई है, बेबस गई है, मुसीबत पे मुसीबत लेकर गई है। लेकिन जब उसने उसके कहने के मुताबिक अमल किया तो उसकी जिंदगी में मौजदा हुआ। और मौजदा जब हुआ, खुशी को जब उसने पाया, बरकत पाई, वो वापस नबी के पास गई और उसको सारा हाल, सारा वाकया बताया। और फिर अलीशा नबी ने उसको बरकत दी। तो मेरे अजीजों, बरकत लेना बहुत बड़ी बात है। याकूब ने कहा फरिश्ते को, खुदा के फरिश्ते को, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तेनों नहीं चढ़ना, मैं तेनों नहीं उछड़ना जितनी देर तक तुम बरकत ना देती थी। फिर उसने बरकत ली, उसने बरकत ली, हर बार वो बरकत ही लेता रहा, धोखे ना भी बरकत लेंदा रहे, क्योंकि वो बरकत का मुतलाशी था। इसी तरह जब वो 10 कौड़ी को हम देखते हैं तो 9 कौड़ी चले गए, बरकत पा गए, शफा पा गए, एक कौड़ी वापस आए। खुदा ने कहा कि मैं सारे शफा नहीं देती। वो तब जानता है कि हम उसे प्यार करते हैं जब हम शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पे हम 3 चीजें सीखते हैं। पहले, जब भी दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, पहाड़ जितने भी हमारे ऊपर टूट पड़े, हमने अपना रुख अपने खुदावन की तरफ करना। दूसरा, हमने उसके अहकाम, कवानीन, उसके हुक्म पर अमल करना है। और तीसरा, हमने उसकी शुक्रगुजारी करना है। 3 चीजें हम सीखते हैं। हमने यानी कि वरना हम ढीठ हो गए हैं। मतलब अब तो मैं कहती हूँ लम्हा फिक्रिया अब हमारे पे आ गया है कि अब वक्त जो है बहुत थोड़ा रह गया। मौत के बाद तेरी याद नहीं, कब्र में तेरी कौन शुक्र गुजारी करेगा। एक पास्टर थे, उन्होंने अपना मैसेज तैयार करके ना डाइस पे रख गए। हफ्ते को, इतवार को उनका मैसेज था। उन्होंने कहा चलो मेरा मैसेज तैयार करा है, वहाँ पे मैं इतवार को जाऊँगा और अपना मैसेज सुनाऊँगा। मैसेज का टॉपिक ये था कि मैं जल्द आ रहा हूँ। तो कौन आ रहा है खड़ा? खुदा मुझे जल्द। और मैसेज ये गुम हो गया, पेपर गुम हो गया। बस बार बार बेचारा कहता रहा मैं जल्द आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ। एंड जी भैन भूना सारिया थले बैठी हैं, बस कहीं जाए तो एकदम ना बेचारे भैन के उत्ते टिक पिया। तो भैन कहता तुहानू, कहना बेटा तुहानू सट तो नहीं लगी? भैन कहती नहीं मैनू सट नहीं लगी, मैं ढीठ सा क्योंकि तू तो इन्नी देर का रौला पाया मैं जल्द आ रहा, मैं जल्द आ रहा, मैं जल्द आ रहा वहाँ। मैं ढीठ सा, मैं परे ही नहीं हुई, मैं परे नहीं हुई। तू तो रौला पाया है, हमारे यीशु ने रौला पाया है, रौला पाया हमने कि मैं जल्द आ रहा हूँ, मैं जल्द आ रहा हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ यही मांगने के खुदा
تو ہم میں سے سستی لاپرواہی کاہلی کو دور کر. کسی وقت میں وہ جو زکئی نام کا وہ چھوٹے قد کا پھول لینے کا، چھوٹے قد کا، میں اپنے اوپر یہ باتیں زیادہ دیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں خدایا وہ تو جسمانی طور پہ چھوٹے قد کا سی، کسی روحانی طور پہ چھوٹے قد، روحانی طور پہ بھی چھوٹے قد ہے، لیکن اسی اور کو مدد مانگنی اور کو فضل مانگنا ہے کہ اے خدا تو آ یسوع تو ساری رہنمائی کر، ساڑے اندر سستی لاپرواہی کاہلی دور کر تے اخیر زمانے ہم سانو اپنے ہاستے تیار کر، تاکہ جب وہ آئے ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہوں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں. زمین و آسمان کے سچے خالق و مالک، قہر کرنے میں دھیما شفقت میں غنی خدا، آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام. تیرے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، تیرے نام میں تسلی پائی جاتی ہے، تیرے نام میں شفا پائی جاتی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. باپ بیٹے روح القدس ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. باپ تیری نازوان محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بیٹے کی قربانی کا شکر ادا کرتے ہیں، پاک روح کی حضوری معموری کا شکر ادا کرتے ہیں. پاک روح جس طرح تو پانیوں پر رسولوں پر جنبش کرتا تھا، تو آج بھی اپنے لوگوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر جنبش کر، ہمارے ذہن سوچو خیالات کو پاک کر. ہم خالی برتن ہیں، ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے، کیونکہ تو نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا ہے. تو نے صلیبی موت کو قبول کیا، تو نے کوڑے کھائے، خون بہایا، تاکہ ہم مخلصی پائیں، ہم رہائی پائیں، ہم نجات پائیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے ہمیں اپنے شاہی کانوں کا فرقہ بنا لیا، تو نے اپنے خاندان میں ہمیں شامل کر لیا. اس بات کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں. اے باپ، جب بھی ہم تیرے بیٹے کے وسیلہ سے مانگتے ہیں تو تو کبھی بھی ہمیں مجروح اور شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، سارے دن کی محافظت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور تو ہمارا ایسا محافظ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، تو دن رات کا ہمارا خدا ہے. تو ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتا ہے. تو کہتا ہے شاید ماں تو بھول جائے لیکن میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا، میں بوڑھے ہونے تک بھی تمہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھوں. ہم تیرا شکر ادا کرتے، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں. ہمیں اے خداوند، ہم تیرے فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح ہم جھکتے ہوئے اے خداوند تیری حضوری میں حاضر ہوں. اس کلیسیا کے لیے اے خداوند میں برکت کی دعا چاہتی ہوں. اس جگہ پر اے خداوند تیری راگنیاں اٹھتی رہیں، تیری حمد و ستائش ہوتی رہے، تیری عبادت ہوتی رہے. اس کلیسیا کے اے خداوند سربراہ کے لیے، پاسٹر نسیم کے لیے برکت کی دعا، ان کی فیملی کے لیے برکت کی دعا چاہتی ہوں. اے خداوند پانی کے ریلے کی طرح اے خداوند یہاں پہ لوگ آئیں اور تیری حمد و ستائش، تیری عبادت کریں اور تجھ سے برکت کو پائیں. تیرا شکر کرتی ہوں. جتنی جانیں یہاں پر بیٹھی ہیں اے خداوند، تو سب کو کثرت کی برکت دے. اے خداوند ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی نسلوں کے ساتھ ہو. اے خداوند ان کے گھرانوں میں اے خداوند ان کے خطے تیرے الہی خزانے سے بھرے رہے. اے خداوند ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرنا. جو بیمار ہے تو نے شفا دے میرے خداوند. میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف، تیری تمجید کرتی ہوں.
یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں یسوع کے میٹھے اور جلالی نام میں، آمین۔